Good morning, everyone. We are in a class of business studies and we were on chapter number first of our book. We have already completed the first part of this chapter, that is the part related with industry. We have discussed the classification of business activities into industry and commerce, and we have completed the categorization of industrial activities. Three types of industries: primary, secondary, and tertiary. We have completed all the subparts of this topic. Now have a look. Our today's topic is discussion on commerce. We will start with the meaning and scope of commerce. हम पढ़ेंगे commerce क्या है, कॉमर्स की क्या क्या फंक्शंस है और कॉमर्स क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। यानी आपकी जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको आज की क्लास में पढ़ने को मिलेगी। नाउ हैव अ लुक। कॉमर्स, basically commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in distribution of goods and services. We have discussed that business is an economic activity that is related with either production or procurement. दो काम होगी ना, production होगा या फिर procurement होगा। Production we have done in industry, complete कर लिया था all the activities related to production. अब यहाँ सारा काम हो रहा है procurement से related. Procurement का मतलब है goods का movement करवाना, goods को basically procurement का meaning है purchasing the good for the purpose of selling, right? लेकिन इस purchasing of good फॉर सेलिंग के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है, जिसमें एम एक ही होता है कि गुड्स और सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है। Whatever goods are being produced need to be distributed to the ultimate consumer, and the distribution is handled over by the commerce branch. Now have a look. What is written over here? One by one, I'm reading the sentences and you are the one who will be explaining it. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumers. Who will explain? Sentence का meaning क्या है? Simple सा sentence है. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. आपको इसको हिंदी में translate करना है simply. Who will translate the sentence? Be quick, everyone. Raise your hands. Yes, Karan. यस मैम। मैम यहाँ पर लिखा है कि मैम गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक मैम ये गुड्स कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सिंपल। गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा अगर वो गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे। मैं यहाँ घर पे अकेले बैठ के पढ़ा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, अगर आप तक ही आवाज नहीं आ रही तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा? डेफिनेटली नो। अगर मेरी सर्विस कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। Goods are produced at one place and consumers are scattered at different places. ये मैं समझा देती हूँ। गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं जबकि कंज्यूमर अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। जैसे कि टीचर स्कूल में पढ़ाता है बट बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं ना, सबके एक एक के घर पे जाके तो हम नहीं पढ़ा पाते। तो क्या कह रहे हैं ये? वैसे ही गुड्स है। टी प्रोडक्शन असम में और दार्जिलिंग में हो रहा है बट कंजप्शन तो सब जगह हो रहा है, कंज्यूमर तो अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉमर्स में होता है। आगे देखिए। The consumer are not aware of what kind of goods are produced by manufacturer. Consumer को पता भी नहीं है कि manufacturer कितनी तरीके की चीजें बनाता है, तो वो भी उनको बताया जाता है by using the advertisement. आगे देखिए। Goods are produced in large quantity and are demanded by consumers in small quantity. Goods बहुत सारी quantity में बनते हैं but consumer उनको छोटी छोटी quantities में demand करता है। All these problems that are the hindrances of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, etc. are solved by commerce. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बहुत सारी problems आती है goods बना के consumer तक पहुंचाने में। इन प्रॉब्लम्स को हिंड्रेंस कहते हैं। हिंड्रेंस यानी रुकावट, हर्डल या बाधा। हर्डल आप वर्ड यूज कर सकते हो, हर्डल और प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, राइट? नाउ देयर आर 6 मेन हिंड्रेंसेस, 6 मेन प्रॉब्लम है।
और उन 6 की 6 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कॉमर्स। कॉमर्स ने 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ फर्स्टली लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम द चार्ट। उसके बाद में हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट फंक्शंस के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। Give me a second. Yes, you have to look here. ये हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है। कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के अंदर वही 5 थिंग्स आती है जो टर्शरी इंडस्ट्री में आया था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 चीजें एड्स टू ट्रेड में आती है। और ट्रेड का मतलब होता है गुड्स का मूवमेंट करवाना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरर से पिकअप करके कंज्यूमर को डिलीवर जो लोग करते हैं उनको ट्रेडर कहा जाता है। अब ये ट्रेड कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट। फिर ये 1 बाय 1 एड्स टू ट्रेड सारे 1 बाय 1। नंबर 2 बैंकिंग, नंबर 3 इंश्योरेंस, फिर वेयरहाउस, फिर कम्युनिकेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन। यानी एड्स टू ट्रेड के 5 पार्ट और ट्रेड का 1 पार्ट। ये 6 कॉमर्स के मेन सेगमेंट्स है। ट्रेड का क्लासिफिकेशन केवल एक सेकेंडरी टॉपिक है। बेसिकली ट्रेडर और ये 6 जो एक्टिविटीज है ये मिलके क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं हम सब, उस पर्सन्स की प्रॉब्लम को कॉमर्स सॉल्व करता है। बुक रीडिंग कर रहे हैं, देन आफ्टर आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी टफ नहीं है, आपको रीडिंग करते ही समझ में आ जाएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में लिख के दिया हुआ है। चलिए, हु विल रीड फर्स्ट पॉइंट इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस? यस, कीर्ति विल रीड। यस कीर्ति। Helps in removing the hindrance of person. A large variety of goods are produced by a group of persons called producers. These goods are produced for another group of persons called consumer. There is no direct relation between producer and consumers. The trade segment of commerce create a link between producer and consumer. Traders help in exchange of goods or services from the producer to consumer and hence remove the hindrance between producer and consumer. यस, वेरी गुड। हु विल एक्सप्लेन? किसको समझ में आया? अगर आप नॉर्मल रीडिंग करेंगी, सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा हुआ है और सारी चीजें आपको पहले से पता है। Who will give it a try? कोशिश कीजिए। Yes, Yugansh will try. Very good, Yugansh. Yes, Yugansh. मैम लार्ज वेराइटीज मैम गुड्स की एक पूरी फैक्ट्री होती है जो बड़े गुड्स प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। These goods are एक ग्रुप होता है जो गुड्स की प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर ग्रुप। ओके, आगे। These goods are produced for another group persons called consumer. और जो ये फैक्ट्रीज या कोई भी जगह गुड्स बनाए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब तक ये गुड्स प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल, ये बनाए किसके लिए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नोन एज कंज्यूमर। कुछ लोग गुड्स बना रहे हैं और बचे हुए लोग गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। मैम इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का। हम सीधा जाके फैक्ट्री से गुड्स नहीं ले सकते। हाँ, वेट फॉर अ सेकेंड। क्या हमें पता है जो शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ, कौन सी फैक्ट्री में बनी है, किसने बनाई है? डेफिनेटली नो। क्या हमें पता है हमने सुबह उठ के जो पेस्ट किया था वो कहाँ बना है? हाँ, हमें ये पता हो सकता है कोलगेट कंपनी ने बनाया, लेकिन हमें कोलगेट के ओनर के बारे में भी पता होता है क्या? डेफिनेटली नो। क्या हमें उस वर्कर का नाम पता होता है जिसने ये कोलगेट बनाया? नो। तो ये कह रहे हैं इन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। प्रोड्यूसर को नहीं पता कि मेरा बनाया हुआ सामान कौन कौन कहाँ कहाँ कंज्यूम करेगा, और कंज्यूमर को नहीं पता कि जो जो चीजें मुझे चाहिए वो कहाँ कहाँ बन रही है। आगे। मैम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता,
बट ट्रेड या वो बिजनेस एक लिंक बना देता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. Okay, yes, have a look. Traders help Very in good. exchange of good. Yes, continue. Traders help in exchange of goods and service from the producer to consumer. मैम उसका एक ही काम होता है कि जो उसने गुड्स बनाया है उसको मार्केट में सप्लाई करे ताकि वो हमें मिल जाए. Yes, very good, Yugansh. Have a look, everyone. चलिए अनम्यूट करते हैं किसी एक स्टूडेंट को और एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं. लक्ष्य पारेख, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. लक्ष्य पारेख. जल्दी से. चलिए लक्ष्य मोदी, यू अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग. लक्ष्य बताइए आपने कौन सा टूथपेस्ट यूज किया मॉर्निंग में? बी क्विक लक्ष्य, जल्दी से. पेप्सोडेंट. क्या आपको पता है पेप्सोडेंट किसने बनाया? क्या? तो आपको पता है जो पेप्सोडेंट आपने यूज किया वो किसने बनाया? कहाँ, कौन सी फैक्ट्री में बना? नो मैम. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर पे जो पेप्सोडेंट आया वो कौन सी शॉप से आया? बिल्कुल पता होगा हमें. ओके बेटा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. देखिए, हमारा प्रोड्यूसर से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन हमारा लिंक होता है ट्रेडर से. तो कॉमर्स का ये जो ट्रेड वाला पार्ट है, ये ट्रेड सेगमेंट हमें इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से लिंक करवा देता है. डायरेक्टली तो हम प्रोड्यूसर से लिंक नहीं हो सकते, लेकिन हम ट्रेडर से लिंक होते हैं. तो ट्रेडर एक लिंक बनता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ट्रेडर प्रोड्यूसर से सामान परचेज करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आगे कंज्यूमर्स को. तो ये जो ट्रेड ब्रांच है ये पर्सन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और पर्सन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का आपस में लिंक बना देता है. तो आपको हाईलाइट करना है 1 मार्क में. अगर पूछ ले विच ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तो आपको बोलना है ट्रेड ब्रांच ऑफ कॉमर्स. कौन सा सेगमेंट? ट्रेड सेगमेंट. और अगर हम ब्रांच की बात करें तो कौन सी ब्रांच? ट्रेड ब्रांच. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस. प्लेस की प्रॉब्लम होती है. क्या आपको पता है जो चाय आपके घर पे सुबह बनती है वो कहाँ सुबह चाय बन रही है, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है? क्या आपको पता है ये जो शुगर आप यूज कर रहे हो ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है? बीकानेर में तो इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत लिमिटेड है और बहुत लिमिटेड चीजों की है. क्लोथ्स जो आपने वियर किए हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है? अलग अलग चीजें जो हम यूज करते हैं, डेफिनेटली हमें नहीं पता कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है. और अगर पता भी है तो क्या हम वहां जाके खरीद के लाते हैं? क्या हमें पता है टी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है असम में, क्या हम वहां तक जाके टी खरीद के ला रहे हैं? डेफिनेटली नो. तो हर जगह एक पर्सन की प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व कर देता है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट. देखिए बुक से रीड कर रहे हैं, 1 by 1 एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, समझते जाना. सेंटेंस नंबर 1, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस. प्रोडक्शन एक जगह होता है, whereas consumers are scattered in different corners of country. Consumer तो हर जगह बिखरे हुए हैं ना, scattered है. Now there is a place gap between producer and consumer. एक place gap है. प्रोड्यूसर कहीं किसी कोने में बैठा है और कंज्यूमर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है. नाउ ये दोनों के बीच का गैप कौन सॉल्व करता है? ना तो प्रोड्यूसर हमें देने आ रहा है और ना हम उसके पास लेने आ रहे हैं. तो सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन है द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स help in removing the place gap. The transport moves goods from the place of production to the markets which are easily accessed by the consumer. Transportation से goods प्रोड्यूसर के पास से निकल के कंज्यूमर तक पहुंचते हैं. कंज्यूमर तक डायरेक्टली हमारे घर तक नहीं आती शुगर, मार्केट में आती है और हम मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं ऐसे मार्केट में जो कंज्यूमर के लिए इजीली एसेसिबल हो. नाउ हैव अ लुक. Thus, transport is essential for buying and selling of goods. It is an important function of commerce. किसी को कोई डाउट है तो बताइए. सिंपल सा पार्ट है, सिंपल, एकदम सिंपल. Anyone, any confusion? All right, have a look. आगे देखिए. प्रॉब्लम ऑफ पर्सन कौन सॉल्व करेगा? ट्रेडर. प्रॉब्लम ऑफ प्लेस कौन सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्टेशन. अगला है प्रॉब्लम ऑफ टाइम. चीजें ऐसी होती है, काफी चीजें तो ऐसी होती है जो पूरे साल बन रही होती है.
लेकिन कंज्यूम पर्टिकुलर सीजन में होती है। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, एसी जो हम यूज करते हैं, समर्स में सडनली डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या आपको लगता है सारी एसी सिर्फ समर में ही बन रही है? डेफिनेटली नो, पूरे साल बनती रहती है। कंजप्शन पर्टिकुलर सीजन में होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका प्रोडक्शन पर्टिकुलर सीजन में होता है पर कंजप्शन पूरे साल होता है, जैसे व्हीट और राइस। पर्टिकुलर कोई सीजन में क्रॉप्स ग्रो होती है लेकिन डिमांड ऑल ऑफ द ईयर रहती है, पूरे साल रहती है, राइट? तो जो ये गैप रह गया, जब गुड्स बन गए पर कंज्यूमर को अभी नहीं चाहिए, तो उनका क्या करेंगे? उनको स्टोर करके रखेंगे वेयर हाउस में, और जब भी जरूरत होगी तब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपली यही लिखा हुआ है, some goods are produced in a particular season only but are demanded throughout the year. For example, wheat, rice, pulses, etc. कुछ चीजें ऐसी होती है जो बनते पर्टिकुलर सीजन में है लेकिन उनकी डिमांड पूरे साल होती है। On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded only in a particular season. कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका प्रोडक्शन तो पूरे साल होता है पर डिमांड पर्टिकुलर सीजन में होती है। It means there is a time gap between production and consumption. Production और consumption same time पे नहीं हो रहा है, एक time gap आ रहा है। The goods need to be kept safe and fresh during this time gap. इस time gap में ये जरूरी है कि हम goods को safely रख सकें। Warehousing segment of commerce helps in removing the problem of time gap. कौन solve करता है? Warehouse. भूलना नहीं, कौन सॉल्व करता है? वेयर हाउस। क्या वेयर हाउस किसको कहते हैं? गोडाउन्स को। जो गोदाम बने हुए होते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें, जहां पे हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ हैव अ लुक, द गुड्स कैन बी कीप्ड सेफली इन द वेयर हाउस till they are demanded in the market. जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होती तब तक गुड्स को वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखा जा सकता है। Various types of warehouses are constructed and according to the requirement of goods are kept in these warehouses. ये कह रहे हैं अलग अलग तरीके के वेयर हाउस है, जैसे मेडिसिन है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, राइट? ऐसे ही अलग अलग तरीके के गुड्स है जिनको अलग अलग टेम्परेचर्स पे और अलग अलग तरीके के वेयर हाउसेस में स्टोर करने की जरूरत है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स के लिए वेयर हाउस बना दिए जाते हैं और उनको ऐसे वेयर हाउसेस में स्टोर कर दिया जाता है। 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। कॉमर्स के फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट देखिए, helps in removing hindrance of exchange. Who will read? एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉमर्स। चलिए कौन पढ़ेगा ये पॉइंट? यस, शुभांगी will read. Yes, शुभांगी। Help in removing the hindrance of exchange. The goods and services produced by the manufacturer are sold to buyers in exchange of money. The common medium of exchange is circulated by the banking branch of commerce. The bank helps the buyers and sellers in making the collecting payments. Now, ओके शुभांगी, वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं goods and services produced by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money. किसके बदले में सेलिंग होती है? मनी के अगेंस्ट। The common medium is circulated by banking branch of commerce. ये मनी हम सब तक किस ब्रांच से आता है? मनी से, बैंकिंग से, सॉरी, मनी किससे आ रहा है? बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स से। Bank helps the buyers and sellers in making and collecting payments. Now, businessmen can send money from one place to other in the form of bank draft, checks, etc. अब तो गूगल पे, पेटीएम भी हो सकता है, लेकिन गूगल पे, पेटीएम किसके लिए अवेलेबल है? जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है। अगर आप बैंकिंग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपकी पेमेंट्स बहुत इजीली हो जाएंगी, राइट? अब तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, घर बैठे बैठे आप इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो मनी का सर्कुलेशन है ये बैंकिंग ब्रांच इजी बनाता है। आगे देखिए, बैंक हमें लोन फैसिलिटी भी देता है। Banks are also financing businessmen by granting them loans, credit facilities, etc. बैंक बिजनेसमैन को लोन और क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहा है। Banks are helping in external trade also by issuing letter of credit and providing foreign currency. बैंक एक्सटर्नल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड को भी इजी बनाता है, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देगी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फॉरेन करेंसी भी हम बैंक से ही जाके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग फैसिलिटी है
जिसकी वजह से हम इजीली एक्सचेंज कर पाते हैं। 4 functions we have covered. Number 1, there is a problem of person which is solved by trader. Number 2, there is a problem of time which is solved by warehouse. There is a problem of place which is solved by transport, and there is a problem of exchange which is solved by banking. Next, hindrance of risk. चलिए कौन बताएगा रिस्क से कौन बचा सकता है? मुझे रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है, तो रिस्क से प्रोटेक्शन कौन देगा? Raise your hand, tell me. हमने पढ़ा है टर्शरी इंडस्ट्री में। यस जानवी। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, बिल्कुल। अगर आपको रिस्क से सेफ्टी चाहिए तो आपको इंश्योरेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क व्हिच अ बिजनेसमैन हैज टू फेस। बहुत सारी रिस्क है जो किसको फेस करनी पड़ती है? बिजनेसमैन को। The insurance branch of commerce help in removing the hindrance of risk. कौन सॉल्व करता है? इंश्योरेंस। कैसे? By providing protection and compensation to the insured. Insured कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया। अगर मैंने LIC से लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया तो मैं इंश्योर्ड हूँ। इंश्योर्ड को कंपनसेशन दे देती है इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ लॉस। आगे देखिए, इंश्योरेंस कंपनी एग्री to undertake to make good the loss suffered by businessman. इंश्योरेंस कंपनी कहती है बिजनेसमैन को अगर लॉस हो गया और उसने प्रीमियम डिपॉजिट करवाया है तो हम उसके लॉस की रिकवरी कर देंगे। अलग अलग रिस्क है, जैसे कि डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। रास्ते में मैंने मेरे यहाँ से गुड्स को डिस्पैच कर दिया, वो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस मुझे उसकी सेफ्टी देता है। मैंने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा लेकिन डैमेज हो गया, यहाँ भी इंश्योरेंस मुझे सेफ्टी दे सकता है। फायर, फ्लड या रेन से किसी भी वजह से मेरे गुड्स खराब हो गए तो इंश्योरेंस मुझे सेफ्टी दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं है किसने क्या बनाया, तो ये नॉलेज हमें मिल जाती है टीवी में एडवर्टाइजमेंट से। हमें कैसे पता चला कि इतने सारे तरीके के टूथपेस्ट आ रहे हैं, इतने सारे तरीके के सोप्स आ रही है, परफ्यूम्स आ रहे हैं, डीओ आ रहे हैं, अलग अलग मोबाइल फोन्स आ रहे हैं? ये सब हमें पता चलता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच क्या करती है? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का कम्युनिकेशन गैप कवर करती है। कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द मार्केट, व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Generally, consumer and buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer. हम unaware होते हैं, हमें नहीं पता होता। As there is no direct communication between manufacturer and ultimate consumer. क्यों नहीं पता? क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमें फोन करके नहीं बताता कि हमने ये बना दिया, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं बताता, तो फिर कैसे पता चलता है? तो देखिए कैसे पता चलता है। The advertisement branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge. कौन सॉल्व कर देता है इस प्रॉब्लम को? एडवर्टाइजमेंट। कैसे? By spreading awareness about the new products and their utility. नए नए कौन से प्रोडक्ट आए और उनके क्या क्या यूजेस है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करता है। ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की बात की, अब तो इसके बाद बहुत सारे आ गए। i9 के बाद भी बहुत सारे प्रोसेसर्स एडवांसमेंट्स हो चुके हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर हमें कैसे पता चला? टीवी की एडवर्टीजमेंट की वजह से। Now, these are the 6 basic functions performed by commerce due to which it is known as the backbone of industry. यहाँ highlight कीजिए आप। You have to highlight this part. Commerce is considered as the backbone of industry. Why? Because it is providing 6 basic facilities: trading facility, transport facility, warehousing facility, banking facility, insurance facility, and advertising facility. Anyone, any doubt, any confusion up to this part? If yes, then you can ask me. यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो हमने इसका बुक रीडिंग ले लिया है, फिर मैं वापस आपके सामने स्लाइड शेयर कर दूँ। कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। नो, हैव अ लुक देन। वापस से हम आ जाते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड से हमारी जो क्लासेस चल रही थी,
द स्लाइड इज बीइंग शेयर्ड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 to 30 सेकेंड्स। तब तक सुनिए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड और ट्रेड के टाइप्स। ट्रेड क्या होता है और ट्रेड की क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये देखिए, हमने कॉमर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, कॉमर्स क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये पढ़ लिया है। अब देखिए ट्रेड क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, बाय और सेल। यानी ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। किसी से परचेज किया और किसी को आगे सेल कर दिया, तो यही ट्रेड है। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे बताइए मुझे, हु विल एक्सप्लेन। बहुत इजी सा लिखा हुआ है, हु विल बी एक्सप्लेनिंग द पार्ट, रेज योर हैंड्स। सभी को आता है, कोशिश ही तो करनी है। Still only limited students. What about the others? Give it a try. Yes. Okay. Karan will explain the first sentence, Yugansh will explain the second one, and Janvi will explain the third one. तो Karan आपको केवल first sentence बताना है, first full stop तक बताइए। यस मैम। मैम इसमें लिखा है कि जो मैम ट्रेड जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रेफर करता है, मतलब किसी चीज को खरीद कर बेचना। हाँ, ट्रेड का मतलब है चीजों को खरीदना और आगे सेल आउट कर देना। चलिए युगांश, सेकंड सेंटेंस। मैम द पर्सन हु कैरीज ट्रेड इज नोन एज ट्रेडर। मैम जो भी ये सब हैंडल कर रहा है, जितना भी परचेजिंग का, गुड्स का, सेल्स का, उसको ट्रेडर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, द पर्सन हु इज हैंडलिंग ओवर द ट्रेडिंग एक्टिविटी इज नोन एज ट्रेडर। ओके, यस, थर्ड सेंटेंस। जानवी थर्ड सेंटेंस समझाइए। Trader act as a link between manufacturer and consumer. Trader manufacturer और consumer के बीच में आता है और दोनों की हेल्प। हाँ, दोनों का लिंक है। इट मीन्स मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनका इंटरेक्शन होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स। ट्रेड टू टाइप्स के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का दूसरा नाम है होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या है, हमने अपने घर पे ट्रेड किया? डेफिनेटली नो। होम ट्रेड का मतलब है द ट्रेड विच वी आर carrying on within our geographical boundaries of our country. इंडिया के अंदर अंदर अगर आपने कुछ भी काम किया है within the geographical frontiers of your country, उसको internal trade कहेंगे। और अगर आपने अपनी geographical boundaries को क्रॉस करके फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया है, तो उस ट्रेड को आप कहोगे इंटरनेशनल ट्रेड। रिपीट कर रही हूँ, इंटरनल ट्रेड वो सारा ट्रेड जो आपने अपनी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर किया है। एक्सटर्नल ट्रेड वो सारा ट्रेड जो आपने अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके किया है। हैव अ लुक, इंटरनल ट्रेड के बारे में क्या लिखा हुआ है। It is conducted within the geographical and political boundaries of a country. It can be at local level, regional level or national level. Local level पे भी हो सकता है, मैं सिर्फ बीकानेर के आसपास के एरियाज में सेलिंग कर रही। रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, मैं जैसे मैंने राजस्थान को कवर कर लिया। नेशनल लेवल पे भी हो सकता है कि मैंने क्या किया, पूरे इंडिया में ट्रेडिंग कर ली। आगे देखिए, एक्सटर्नल, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में बाइंग और सेलिंग करते हो तो वो एक्सटर्नल है। क्या आप बीकानेर की किसी भुजिया पापड़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को जानते हैं, कंपनी को जानते हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड में एंगेज्ड है? बताइए। यस करण। मैम बीकाजी मैम फैक्ट्री भी गया हूँ वहाँ की। बिल्कुल, बाहर उन्होंने अपने प्लांट्स भी लगा रखे हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे डीलर्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ला रहे हैं जो एक्सपोर्टेड गुड्स है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है। आप जो डेली चीजें यूज करते हैं उनमें से कितनी सारी चीजें इंपोर्टेड होती है जो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हुई होती। ठीक है, तो अब देखिए इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग तो हमने कवर कर लिया। ये ट्रेड दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में नंबर 1 होलसेल और नंबर 2 रिटेल। होलसेल क्या होता है, जब भी आप बल्क में बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। ध्यान रखना है, ये जो इंटरनल ट्रेड लिखा हुआ है ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, आपकी बुक का चैप्टर 9 है ये।
तो इंटरनल ट्रेड की 2 पार्ट्स है, होलसेल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क, एंड रिटेल ट्रेड जो हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदते हैं चीजें, उनको रिटेल ट्रेड कहते हैं। आगे देखिए, मीनिंग लिख के दिया हुआ है, रीड कर लीजिए। Wholesale trade, buying and selling of goods in bulk, and retail trade, buying and selling of variety of goods in small quantities. अगर मैंने small quantities में किया तो ये retail trade है। आगे देखिए, international trade 3 types के, export import सबको पता है। Export means selling goods to a foreign country. Import means buying goods from a foreign country. अब ये entry port क्या है? इसको re-export भी कहा जाता है। Entry port का मतलब है purchasing goods from a foreign country or selling it to another foreign country. किसी एक कंट्री से परचेज करना ताकि हम किसी दूसरी कंट्री को सेल आउट कर सके। It means हमने परचेजिंग की है but not for our country, not for consuming the goods in our economy. We have purchased the goods for reselling the goods in another foreign country. इसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। रीडिंग करके देखिए, एक्सपोर्ट का मीनिंग रीड कीजिए। Yes, Yugansh, wait for a second. पहले हम इसका मीनिंग रीड कर लें, then after I will be listening to you. Number 1, export. It refers to selling the goods to foreign country. Import, buying the goods from foreign country. Re-export, buying of goods from foreign country for selling them to another foreign country. चलिए, yes, Yugansh, you can unmute and speak. मैम एंटरपोर्ट से हमें क्या फायदा होता है? सिर्फ कमीशन मिलता है? बिल्कुल कमीशन मिल सकता है और कुछ और इंटरनेशनल टर्म्स की वजह से हमेशा करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, सभी बच्चे स्क्रीन पे एक एग्जांपल देखें। मैं यहाँ 2 नेशंस के नाम लिख रही हूँ, आपको बताना है। हम पहली बात ध्यान रखना, हम किसी भी कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं। 2 कंट्रीज है यहाँ पे, इंडिया। आपको तो केवल इतना बताना है इन 2 कंट्रीज के बीच के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, इन 2 इकोनॉमीज के बीच के टर्म्स कैसे हैं। कौन बता रहे हैं? यस, राघव आप बताइए। राघव, ये जो बच्चे अनम्यूट नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन पे, वो क्लासेस ना लिया कीजिए। If you are asked to unmute yourself, you are supposed to do that. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। Yes, रौनक गुप्ता, unmute yourself. रौनक गुप्ता, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, बेटा, tell me. आपको जब भी सुनने में आता है इंडिया और पाकिस्तान, इनके टर्म्स के बारे में, तो आपने क्या सुना है? हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं या कैसे हैं? मैम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, राइट? काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, पार्टीशन की जस्ट बाद से, ये ब्रिटिशर्स की वजह से ऐसा हुआ था, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। उसके बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टर्म्स अच्छे नहीं रहे हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल की बात करते हैं। पाकिस्तान में कश्मीरी शॉल मैन्युफैक्चर होते तो हमारे इंडिया में भी है। आई हैव अ क्वेश्चन। यस, यू कैन आस्क मैम, योर क्वेश्चन। कैन वी ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर दिस यस बेटा, वी कैन ब्लेम द ब्रिटिशर्स, बिल्कुल। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और उन्होंने ये जो कास्टिज्म के बेस पे ये हमारे माइंड में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना उन्हीं का काम था। वो इतना ज्यादा उन्होंने डाल दिया कि अभी भी आप छोटे 4 साल के बच्चे से भी पूछ लो, जिसे पता ही नहीं है कि क्या दुश्मनी है, उसके माइंड में भी ये डिफरेंशिएशन बना हुआ है, राइट? तो ये वी कैन कंप्लीटली ब्लेम ब्रिटिशर्स, बट उसके बाद हमें भी आज तक इतना टाइम हो गया है, तो हमें भी अपनी थिंकिंग्स को चेंज करना चाहिए था। इज इट ओके? चलिए देखिए, so we were on the कश्मीरी शॉल। पाकिस्तान में कश्मीरी शॉल मैन्युफैक्चर होते हैं और बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है? अब कश्मीरी शॉल हमें इंडिया में चाहिए, लेकिन हमें पता है कि भाई हमारे टर्म्स बढ़िया नहीं है, तो हम तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर नहीं सकते।
हमने क्या किया, हमने अफगानिस्तान को पकड़ा। उतने बुरे टर्म्स नहीं है हमारे अफगानिस्तान से। हमने अफगानिस्तान को पिक किया। हमने अफगानिस्तान को कहा कि आप पाकिस्तान से कश्मीरी शॉल परचेज कीजिए और हमें सेल आउट कर दीजिए। आप जितने भी रेट पे परचेज कर रहे हो उसमें 10% कमीशन ऐड करके हमें सेल आउट कर दीजिए। अब देखिए चेन बनी, कैसी चेन बनी, जल्दी से देखिए, क्लास एंड होने वाली है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने सेल आउट किया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान ने इसको वापस सेल कर दिया इंडिया को। अब पाकिस्तान के लिए ये सिंपल एक्सपोर्ट है, इंडिया के लिए ये सिंपल इंपोर्ट है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये री एक्सपोर्ट है, क्योंकि वो शॉल परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट टू अनदर कंट्री। तो वो अपना कमीशन अर्न कर लेगा और हमें वो सामान मिल जाएगा जो डायरेक्टली हम पाकिस्तान से नहीं परचेज कर पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं।